Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is your chapter 10th, Hydrosphere, Tides and Ocean Current. In this chapter, today we discuss here how ocean currents are caused. हमारी जो ocean current है कैसे create हो रहे हैं, okay? And in this chapter, hydrosphere or tides, we already discussed in the last video, and here to discuss ocean current. Okay, so introduction part of ocean current we already discussed. This is your definition of ocean current: the large scale movement of water in ocean in a definite directions are called ocean current. जब large water body पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी उसको बोलते हैं हम ocean current. Or basically ocean current, there are two types of current. First is warm current or cold current. So warm current that originate near the equator and flow towards the pole. Warm current always originate near the equator and move towards the pole. Or cold current always originate in the near the north pole or south pole and move towards the equator. Clear? So this is the definition of ocean current and their type of ocean current, warm or cold current. So now I will discuss here the main cause of ocean current. The pattern of oceanic circulation is produced by the interaction of number of factors. जो हमारी जो ocean currents हैं जो originate हो रहे हैं इसके पीछे so many causes are there. Basically 4 main causes here. First is planetary wind. Second, variation in sea water temperature, variation in water salinity and rotation of the earth. Okay, so we discuss here all the point. Planetary wind means permanently, जो wind permanently on the surface one place to another place move कर रही है. Okay, और you know to कि before this we discuss some point here कि when your permanent wind move करेगी तो यू नो टू ऑल जब ये ओशन या सी के ऊपर मूव करेगी तो साथ में वाटर को पुश करेगी और ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से बाय द विंड आपका वाटर मूव करेगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वही आपका क्या है ओशन करंट है जबकि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर मूवमेंट हो रही है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, सो प्लैनेटरी विंड आर एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द ओशन करंट. ओके, so the planetary wind blow continuously in particular directions and drag the surface of water due to the force of friction. Basically above a surface there are 3 planetary wind. First is equatorial, we can say trade winds. Second, westerlies, or third is polar winds. Total 3 planetary wind is there जो रेगुलरली वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रही है. और उनके एग्जांपल क्या है? फर्स्ट है ट्रेड विंड्स, सेकंड इज वेस्टरलाइज और थर्ड इज पोलर विंड. ओके, जब ये परमानेंटली कंटिन्यूसली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन से मूव करेगी से ड्रैग द सरफेस वाटर, तो जो हमारा वाटर का सरफेस है उसको ये ड्रैग करेगी. ओके, एंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके, तो जो वाटर ड्रैग होगा किसकी वजह से होगा? ड्यू टू द फ्रिक्शन विद एयर. ओके, so this lead to the formation of ocean current. तो इसकी वजह से आपके ocean current originate हो जाते हैं. Okay, and most of the ocean currents of the world follow the direction of prevailing wind. जो ये wind फ्लो करेगी जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगी उसी डायरेक्शन में आपका वाटर मूव करेगा. तो मैक्सिमम हमारे जितने भी ओशन करंट्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ विंड की, कि जिस डायरेक्शन को आपकी प्रिवेलिंग जो विंड है आपकी जो प्लेनेटरी विंड है जिस डायरेक्शन को मूव करेगी उसी डायरेक्शन में आपके ओशन करंट ऑरिजिनेट हो जाएंगे. ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, प्लैनेटरी विंड्स. कि प्लैनेटरी विंड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द ओशन करंट. ओके, क्योंकि आपकी जो प्लैनेटरी विंड मींस क्या? परमानेंटली जो वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन रेगुलरली मूव कर रही है, कंटिन्यूसली मूव कर रही है. ओके, और ड्यू टू दैट आपका जो वाटर वो ड्रैग हो रहा है. ठीक है, और ड्रैग क्यों हो रहा है? ड्यू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि आपकी विंड जो है वो वाटर के साथ फ्रिक्शन कर रही है और जिस डायरेक्शन को आपकी विंड फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन पे ओशन करंट स्टार्ट हो जाते हैं. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, प्लैनेटरी विंड. सेकंड पॉइंट वी डिस्कस हियर,
वेरिएशन इन सी वाटर टेम्परेचर। तो दिस पॉइंट को थोड़ा सा अंडरस्टूड करना पड़ेगा आपको, लिसन केयरफुली। वेरिएशन इन सी वाटर टेम्परेचर, यू नो टॉक कि हमारे जो सी हैं या ओशंस हैं, उनका जो वाटर है वो टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू प्लेस वेरी करता है। सपोज करो इफ वाटर बॉडी इज नियर द इक्वेटर आर देयर, तो वो वार्म होगी। वार्म क्यों होगी? बिकॉज सनराइज फॉल वर्टिकली हियर। इफ वाटर बॉडी योर नियर द पोल, वो कैसी होगी? कोल्ड वाटर होगा, क्योंकि यहाँ पर सनराइज स्लाइंटिंग पड़ती है। क्लियर? तो उसी चीज को यहाँ पर अंडरस्टूड करते हैं कि ये जो सिचुएशन वो कैसे क्रिएट हो रही है, और आपकी विंड या फिर आपका जो ओशंस करंट है वो कैसे स्टार्ट हो रहे हैं। सो देयर आर मार्क्ड वेरिएशन in the horizontal and vertical distribution of temperature of the oceans. If we talk about water body in the oceans, तो ओशन में जो अपर पार्ट होगा उसका टेम्परेचर कुछ और होगा, और जो डीप इनसाइड द वाटर होगा वो टेम्परेचर कुछ और होगा। ओके, सो द टेम्परेचर आर हायर एट द इक्वेटर, की टेम्परेचर एट द इक्वेटर क्या होगा? आपका हाई होगा देन द पोल। पोल में टेम्परेचर लो होगा। व्हाई इट इज वार्म हियर? because here sun rays fall vertically, and why it is cold here? because sun rays slanting here. Okay, so thus in the equatorial region the density of water decrease. तो यहाँ density of water क्या होगी? लेस होगी। क्यों लेस होगी? बिकॉज ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड मोर रेनफॉल। जितना वाटर आपका वार्म होगा उतनी ही डेंसिटी ऑफ वाटर लेस होगी, और जितना आपका ठंडा पानी होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। कीप इन द माइंड, इफ वाटर वार्म है तो उसकी डेंसिटी लेस होगी, इफ वार्म जो है कोल्ड है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। क्लियर? सो नियर द इक्वेटर, तो क्या बोले उन्होंने कि द टेम्परेचर आर हायर एट द इक्वेटर एट द पोल। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर हाई है तो डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज होगी ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड मोर रेनफॉल। यू नो टू ऑल की नियर द इक्वेटर ऑलवेज एवरी डे 4 o'clock यहाँ पर रेनफॉल होती है। तो जब डेली यहाँ पर फ्रेश वाटर मिक्स होता रहेगा रेनफॉल के थ्रू, तो यहाँ की जो सैलिनिटी है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? सो आपका जो टेम्परेचर जब रेनफॉल हाई होगी तो वाटर जो होता है, तो मोर रेनफॉल और हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर जो है यहाँ पर क्या है? लेस डेंस है। क्लियर? सो टेम्परेचर आर हायर एट द इक्वेटर देन द पोल, and the equatorial region the density of water decrease due to the high temperature, and as a result of this the lighter water, और जिसकी डेंसिटी लेस होगी वो लाइट वाटर होगा, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो डेंस होगा। अब क्या आपका एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, यहाँ टेम्परेचर हाई है तो वाटर लेस डेंस है, लाइटर वाटर है, और यहाँ टेम्परेचर लो है तो वाटर डेंस है। तो वाटर ऑलवेज मूव टूवर्ड्स द लेस डेंस टू हाई डेंस। कीप इन द माइंड कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी ऑफ वाटर। सो लो डेंसिटी हियर बिकॉज ड्यू द हाई टेम्परेचर, और हाई डेंसिटी है तो आपकी यहाँ पर ओशन करंट स्टार्ट होता है इक्वेटर टू पोल की तरफ। Okay, so as a result of this the lighter water from equatorial region move towards the colder, कि आपका यहाँ से यहाँ को मूव करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज यहाँ पर वाटर आपका लाइट है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर होने की वजह से, और यहाँ वाटर डेंस है, और वाटर ऑलवेज मूव लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी। क्लियर? सो डेंसर वाटर ऑफ द पोलर एरिया। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? सो क्या है? नियर द इक्वेटर यहाँ पर रेनफॉल एंड टेम्परेचर हाई होने की वजह से डेंसिटी ऑफ वाटर लेस है, और यहाँ टेम्परेचर लो होने की वजह से नियर द पोल डेंसिटी ऑफ वाटर हाई है, और वाटर ऑलवेज मूव लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी। तो लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी आपका वाटर मूव करेगा। दिस इज सेकंड पॉइंट, वेरिएशन इन द सी वाटर टेम्परेचर। ओके, एंड नाउ थर्ड पॉइंट हियर वी डिस्कस नाउ वेरिएशन इन वाटर सैलिनिटी। सैलिनिटी मीन्स यहाँ पर मिनरल्स है कि हमारे वाटर में बहुत सारे मिनरल्स मिक्स होते हैं। ओके, so the amount of salt contained in the sea water does vary from one part of the ocean to another part. Okay, कि मीन्स जो सैलिनिटी है, जो सॉल्ट की क्वांटिटी हमारे ओशंस में है, ठीक है, वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। ओके, सो वाटर विद हाई सैलिनिटी इज डेंसर देन दैट द लोअर अमाउंट ऑफ सॉल्ट। जहां डेंसिटी ज्यादा होगी वह हाई सैलिनिटी ऑफ वाटर, जहां सैलिनिटी ज्यादा होगी वहां वाटर का डेंस होगा, और जहां लो
अमाउंट ऑफ सैलिनिटी होगी तो वहां पर लेस डेंस होगा। कीप इन द माइंड, इफ सैलिनिटी ज्यादा है, मिनरल्स ज्यादा है, तो वाटर आपका डेंस होगा। इफ आपके जो सैलिनिटी है लो है तो डेंसिटी ऑफ वाटर लेस होगी। ओके, और हाई सैलिनिटी वाटर टेंड टू सबसाइड एंड मूव बिलो द वाटर ऑफ लो सैलिनिटी। कि मीन्स आपको बोला कि जो हाई सैलिनिटी वो डेंस होगा, तो ऑलवेज जो डेंस वाटर ये बोला कि आपको जो वाटर बॉडीज है, सो हाई सैलिनिटी वाटर, जो हाई सैलिनिटी वाटर होगा वो नीचे होगा, हाई, और जो लो सैलिनिटी वाटर होगा वो अपसाइड होगा। ओके, सो वाटर विद हाई सैलिनिटी इज डेंसर। कीप इन द माइंड कि सैलिनिटी ज्यादा है तो वाटर डेंस होगा, और सैलिनिटी लो है तो वाटर लेस लो होगा, लेस डेंस होगा। क्लियर? सो नाउ ocean currents on the water surface are generated from the area of less salinity to area of high salinity। कि आपकी जो वाटर जो मूव स्टार्ट हो रहा है, मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, कहाँ को हो रही है? लेस सैलिनिटी टू हाई सैलिनिटी की तरफ। ओके, जैसे हमने टेम्परेचर की बात की कि आपका जो टेम्परेचर वाटर जो है वो जैसे कि लो डेंस वाटर से हाई डेंस की तरफ मूव करता है, सेम हियर यहाँ भी लेस सैलिनिटी टू हाई सैलिनिटी। तो जिस ओशन पार्ट में जहां आपकी सैलिनिटी लेस होगी और सब प्लेस ऐसे होगी जहां पर हाई होगी, तो वाटर ऑब्वियस आपका मूव करेगा लेस सैलिनिटी टू एरिया टू हाई सैलिनिटी। जहां आपके मिनरल्स की क्वांटिटी लेस होगी वहां से वाटर मूव करेगा हाई सैलिनिटी की तरफ। ओशन करंट ऑन द वाटर सरफेस आर जनरेटेड फ्रॉम द एरियाज ऑफ लेस सैलिनिटी टू area of high salinity। keep in the mind, okay? And now last point here, rotation of the earth। so it is very easy, आपने already इसके बारे में पढ़ा हुआ पहले। Coriolis force, Coriolis force we already discussed in the last year। so Coriolis force क्या होता है? Coriolis force means when your wind blow in the northern hemisphere they turn the right side, and southern hemisphere when you blow they turn the left side। suppose को this is your earth, ठीक है, एंड दिस योर इक्वेटर। इन नदर हेमिस्फीयर आपकी विंड की डायरेक्शन चेंज होती है टुवर्ड्स द राइट साइड, एंड सदर हेमिस्फीयर दे ब्लो द लेफ्ट साइड, दे टर्न द या डिफ्लेक्ट द लेफ्ट साइड। ओके, दिस कॉल्ड कोरिस फोर्स। कि मींस अर्थ की रोटेशन की वजह से हमारी विंड में की डायरेक्शन में चेंजेस आ जाती है। ओके, सो क्या है, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। हमारी अर्थ तो क्या है, रोटेट कर रही है ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो दिस रोटेशन रिजल्ट, इस रोटेशन की वजह से एक फोर्सेस ऑरिजिनेट हो रही है, डिफ्लेक्टिव फोर्स को बोलते हैं हम। ओके, डिफ्लेक्टिव मींस अपना पाथ चेंज कर लेना, और कोरिस फोर्स विच डिफ्लेक्ट द जनरल डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट। उसकी वजह से हमारी जो ओशन करंट है, ओशन करंट आपका यहाँ को मूव कर रहा है, इसके डायरेक्शन में चेंज हो जाएंगी ड्यू टू द अर्थ रोटेशन की वजह से। और चेंज कैसे होगी? द ओशंस करंट फॉलोइंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर, 0 डिग्री से अप साइड द नदर्न हेमिस्फीयर एंड डाउन साइड सदर्न हेमिस्फीयर। सो इन द नदर्न हेमिस्फीयर आर डिफ्लेक्टेड टू देयर राइट साइड, in northern hemisphere they deflect to the right side, and southern hemisphere they turn the left side। is called Coriolis force। due to that भी आपकी ocean current start cause होते हैं, originate हो जाती है। okay, so this is your fourth factor due to that your ocean currents are caused। okay, so first we discuss here, 4 point। first is planetary wind, second is variation in the sea water temperatures, variation in the water salinity, and rotation of the earth we discuss here in this chapter। okay, thank you।